took some fields and some buttons. Button one, button. I'll tell you, don't worry. Button, button two. I took here any buttons like touch button, close button. Then here through PQ we can define three buttons like this is for can close exit or close and minimize. Okay. So you can minimize through PBO we can define this PBO. Yes. Through PBO we can define this now. One minute. Now my requirement there is a three input fields or n number of input fields or any one only one input field is there suppose. Okay. So how do you validate this? If user entering here wrong value and if you want to fetch based on that, it should be validated. If there is a wrong, suppose you want to fetch customer records from the KNA1 table. Okay, this is Yes. customer in the database is 011,099. Suppose 099. But instead of customer number, if you put in here your name, so it should be validated like we validate in the LV report. We did LV validation. So how will you do the validation? So that's why we have to use PAI event. PAI event when it triggers process after input, same event you will find in the normal reports at selection screen. Screen. Right. Selection screen. It could be on or at selection screen normal. Both work same, similar. Okay. Here under the PAI event process after input you use chain operators. So in case of only normal field you want to validate, you can use normal PAI or at selection. If you want to validate all the fields, suppose there is a 5 fields is there, you want to validate all the fields, then there is a chain concept in there. Chain in the chain. Through chain in the chain, you can validate multiple fields in module program, but chain in the chain can't work in normal report. Chain in the concept you only works in the module 2 programming. Through chain in the chain, you can validate multiple input fields. Yes. All the fields you validate through chain in the chain. So that is the concept. Basically, this is the actual concept. Okay. Okay. This is PAI modules. Yes. Module program must be created first before that. Green design. When you know already, suppose this is your driver. This is your driver. You want to get customer records like customer 10 fields from the database table. You know I need 10 fields. Then based on 10 fields you can design a screen. Yes. This is the proper way. Or before you design the screen and you will take all the fields, multiple fields, then you will remove some fields. Then you will have to. This is not a way. First define the driver program, then define this. Yes. This is the proper. Okay. Okay. So now this is the way module input of data declaration business logic perform. The module tool name or screen programming must be similar. Similar. This is not told, this is the database, right? This is your report, or this is your driver program. Yes. So you get the data from database, process here and pass to the screen. Green. This driver program name and this screen name should be similar. Must be same. Or must be similar. Why? Because if your driver program is going to find the module through the screen, then it will not able to find because its name is a different name. So this is the mandatory thing. This is the mandatory thing. The module tool program must be created first. First thing, another thing, the module tool name and screen program name must be similar.
Similar. Now you got it, right? Yes. Screen painter. Screen painter means your screen. Yes. The functional screen. This is a these are the tabs. We call these are the tabs. Okay? Tab strip. Yes. So these are the tabs, just tabs. So this is Okay. your screen. This is your screen. Okay? Yes. Screen painter, where you paint, where you define the screen. Okay? Yes. This is it. So first it should be one driver program. I haven't created any driver program, then it will not find the driver program. That's why I'm going to create C. Does not Does exist. not exist. So you need to create first one code. So let's try. Okay. Just for trying purpose, I'm going to take this. Okay. Okay. Now it came, right? Yes. So from scratch, I'm going to build a new driver program. This is just for example. Okay. Now module full Full program. in to display Yes. XNWD EPM data model XNWD underscore SO. Suppose that example. Yes. Yes. If you click on the element list, here you can see. I will tell you what is the use for this. Flow logic. If you click on the flow logic, if you click on the flow logic, see, automatically system in, added this. What is the Yes. output? Yes. Automatically system has been added. See what is working. So here you can go to module screen. Here you can go to the system. This some options has been changed. Okay. So here there is an option you can jump to the designing part. The one minute. Go to yeah. So this is the behind coding you can write here in the flow logic. Flow Yes. logic. What is the meaning of the flow logic? Actual coding part is right here. Behind. So if you execute any functions on the code VA03 or VA01, VA02, something coding is there behind, right? Yes. Suppose I'm not suppose I am a function consultant, which is SAP SD. Yes. Okay, SD consultant. Now I would like to create my sales order. Okay, so what I will do /o VA01. I will go to VA01. Yes. What I will do, which record should is not exist, that I can create. So what I will do VM module. Here I click control. Here just a minute. Okay, this is the now I'm going to create sold to party where we have to select. This is the way to create the sales order. After there is a save button, we call posting Yes. or press enter button. But it should be similar, like mismatch. This should not be mismatched. See, no customer master record exists sold to party. Party. So a person who creates the sales order, who they know everything, like how, like what is the delivery charge, what is the company, what are the returns. So there is something coding behind it. I will show you that coding. Status Program. and screen. Can you see this coding? Yes. This coding runs behind, executes behind of this functional code. Similar to that,
Similar to that, here, Flow logic. yes, this is the way, this is the actually area where we write the business logic related to the screen. Now, I want to design my screen. Right? Yes. So go to layout. Yes. This is the layout. This is the way here you can design the screen. So Yes. what I want, first I want a proper Box. place box. Then I want one text box, customer. Here you can write Name. customer info. Yes. Text. Customer info detail. Info. Sure. Okay. If that customer information. Yes. Okay. Now I want here one text field, input field. Input field. Every input should be V control C copy paste. Every customer field should be the name should be there. What should be the name field one? Work area field. Only field one is actually. One more field I want to take here, field 2. I want to give the name field 2. Field 2. That also we can do. We can take the input from and this is the custom control. Custom control we use to display the image port data. Okay. Custom control. We can take this is a tab step. See, tabs is there. In function we can see the tabs. Right? These are the tabs. Yes. Customer info. I will take one field here. Field 1. Field 1. I want one button. We'll give this name of the button is display. See, this is the button. One more button I want to take. I will take this button. Here you can see right side one important. We take radio buttons, right? See, Yes. icon name we can select from here. Like icon, any icon we can take from here if you want. See, this is this Symbol. this is this coming here. You can deselect block. This is a tool straight. And see here, group we take if we use radio button. Okay. Because it should be in the group, same group. So I don't want radio button now. Okay. So here you can see City code. FCT code means every button has one functional T code, like machine, which is the technical name. Yes. Okay. So display is the technical name of this button. Now close means close. Close is the technical name of the FCT type में exit करेगा, help करेगा, transaction को call करेगा, what it will do at runtime. So now after doing this,
After doing this, what we have to do, we can activate. First, we have to do activate. Then you can execute. After activation, you can execute. Activate. Okay. It's going to that report which I created behind now. So actually here I pass this report name. It should be a driver program name which should be created from the scratch. I will create. So there the system. See, if I execute, it looks like this. Yes. Snake clause. This is not screen. Okay. This is not screen. So this screen you can design. And this is the default button is coming. Exit. Here you have to take these buttons. It should be like come. So this is the way to design a screen. Now if you go to the flow logic, if currently I am in the screen side, screen painter side. If I want to go to the driver program, just click on the program. It will be okay. Yes. So if you want to go to the screen, like go to layout. This is the element list. Okay. Then now I will show you this tool. So screen painter the workbench tool. Workbench means we work with the workbench request. We don't work with the customer. Functional people they work with the customer. The workbench tool is to maintain different type of screen. The transaction code XC51 is used to work with screen painter. This is that T code XC51. Yes, 51. Where I designed the screen, right? Yes. This is. Yes. You can do anything like layout. You can go to the layout. Yes, the layout. Layout. Go to layout. You can take more speeds, more screens. Yes. Following are different types of screens. One is the normal screen, sub screen, dialog screen, selection screen. Selection. The normal screen are main screens. Okay. Yes. These are the main screens, which can be called through transaction code or using a data statement call screen. So this is my see what happens. So my this screen number is 1000. First screen, okay, and Yes. this is my report where I want to call it. This is my report, okay. Yes. Go to the ST38. Put your report name. Go to the change mode. Change. Just a normal report. Here after this in select I will call this screen. Call Or screen. me. So when this my statement will call, this statement will call by default my this screen. This is Design screen. design screen. This screen. Main screen. Go to layout. This screen. This is the default big screen. Right? Okay. Now design screen. This is the normal screen. What is the sub-screen? The sub-screen are part of main screen, which can be main screen. Okay, normal. The sub-screen Normal. can't be executed independently. The flow Like logic, include program. yes, exactly. The flow logic wrap statement call sub-screen is used to call the sub-screen area in the normal. Note: the push button or menu status is not possible on sub-screen.
Okay. It is only for display. यहाँ देखो, ये तो मेरी मेन स्क्रीन है, दिस इज माई मेन स्क्रीन, दिस इज माई सब स्क्रीन। ये Okay. मेरी एक और छोटी स्क्रीन है, उसके अंदर एक स्क्रीन है, देन SCREE स्क्रीन पे। Great. ये एक स्क्रीन है मोबाइल, देख इसको मैं एक्सप्लोर करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा, ये नहीं जा रहा है इसके अंदर, इट्स नॉट गोइंग इन। Yes. नाउ आई कैन टेक हियर अनदर बटन। Yes. This is my sub screen. Switch. There is an option. Horizontal vertical scroll. Okay. So I want to activate first. This is my sub screen. यहाँ पे मेन्यू आइटम नहीं हम डिस्प्ले कर सकते हैं, बट इस ये मेन जो स्क्रीन है मेरी, we can display here. Yes. Obviously, because main screen contains a menu item. It takes time. Sometimes it takes time. Especially we देखो यहाँ पे। So the image sub screen, I have activated, I have executed. Here you cannot see anything, but there is a sub screen. You can define like a tab step control if you will take inside this. See, Okay. it's done. Yes. Table control. ये पीछे रिपोर्ट को क्यों पूछ रहा है एक्टिवेट करने के लिए? Because my screen wants to activate the driver program also. It's checking it right. Okay. Okay. Because table strip control need to be pass some data, but I didn't pass anything, so that's why I got an error. टैब स्ट्रिप कंट्रोल जब हम लेते हैं तो उसमें डेटा पास करना पड़ता है। Okay. ये ब्लैंक है अभी, इसको हटा देंगे। Yes. तो मेरा कहने का मतलब है ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर स्क्रीन जो होती है यहाँ पे, Yes. this is the sub screen. Yes. The sub screen part of the, okay, call screen we have to use to call this screen, internal screen. इसको कॉल करने के लिए कॉल स्क्रीन चाहिए, इसको कॉल सब स्क्रीन चाहिए स्टेटमेंट। Yes. The push down जो buttons होते हैं possible, not possible. The push Yes. button, it is not possible to call sub screen within the sub screen. Okay. Main dialog screen, it is used to populate display the data box with the same generic function. Selection screen, the selection screen is reserved from the report or executable program. The screen number 1000, so the default screen number of the selection screen number is 1000. Okay. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, नॉर्मल स्क्रीन ली, उसमें टैब स्ट्रिप कंट्रोल डाला है, जो सब स्क्रीन इसके अंदर देखो। Okay. अपडेट करता हूँ, ये एक स्क्रीन है, ये मेन स्क्रीन है, नॉर्मल स्क्रीन, दिस इज अ नॉर्मल स्क्रीन, इसके अंदर एक टैब स्ट्रिप कंट्रोल डालता हूँ या टेबल कंट्रोल डालता हूँ। टैब स्ट्रिप डालता हूँ, Tab strip. Tab strip 1. यहाँ से हम इसका एससीटी कोड कर लेते हैं। Tab strip 1. एक करंट जो हम करेंगे, देखो यहाँ पे Tab 1. यहाँ पे होता है टैब वन है ना, Tab 1. इसकी फर्स्ट, देखो फर्स्ट यहाँ पे आ गया। Yes. सेकंड यहाँ पे करना, सेकंड
टेक्स्ट का नेम और इसके ऑपरेशन कैसे होगा इसके एफसीटी कोड पे। तो ये Yes. भी सेम सेम ही रख देते हैं, कंफ्यूजन मत हो। Technical name. Yes. हाँ, टेक्निकल नेम हर बटन में उसका ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट हो गया, इसको भी कर देता हूँ फर्स्ट, इसको भी कर देता हूँ Yes. ओके। ये है मेरी Second tab. तो इसके बाद यहाँ बटन लिया, डायलॉग देखो, टू डिफरेंट कंपोनेंट इन स्क्रीन प्रिंटर। एट्रीब्यूट्स फॉलोइंग डिफरेंट कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स एलिमेंटरी फ्लोलॉजिक लेआउट। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? इट कंटेन्स द टेक्निकल डिटेल ऑफ स्क्रीन सच एज टाइप ऑफ स्क्रीन, नेक्स्ट स्क्रीन नंबर, पैकेज एक्सेट्रा। Yes. ये होता है एट्रीब्यूट्स। Attributes. क्या करता है? इसकी प्रॉपर्टी के बारे में दिखाता है। SC51. Go to layout. देखो एट्रीब्यूट्स में क्या होता है, इसकी पूरी टेक्निकल इसका इंफॉर्मेशन Yes. इंफॉर्मेशन है यहाँ पे तुम्हारा। इसकी प्रॉपर्टी है कि हाँ, और टूल स्ट्रिप है, वे क्या है, टेक्स्ट फील्ड है, लेबल है, फॉल, ठीक है। Yes. तो ये मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ आपको। तो एट्रीब्यूट्स टैब का काम क्या है? एलिमेंट लिस्ट। यहाँ पे एलिमेंट लिस्ट का काम क्या है कि आपको थोड़ी थोड़ी पढ़नी पड़ेगी। लेआउट क्या करता है? Yes. 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 देखो यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे एलिमेंट लिस्ट क्या करता है, पूरी इंफॉर्मेशन है, कौन कौन से बटन हैं, मैंने क्या क्या लिया था फर्स्ट सेकंड। Yes. अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रिपोर्ट है मेरे पास, ये थोड़ी थ्योरी पढ़ने इट इज यूज्ड टू लेआउट। ओपन करके स्क्रीन Yes. देखो, यहाँ से ग्रुप सिटी कोड क्या होता है, फंक्शन कोड ऑफ द बटन। हर जो कोई भी Yes. बटन आता है एक अपने पीछे सिटी कोड रहता है। ग्रुप क्या होता है? यूज टू स्पेसिफाई द रेडियो बटन। कि रेडियो बटन एक ग्रुप में क्यों डाले जाते हैं वहाँ पे रेडियो बटन? क्योंकि रेडियो बटन का क्या होता है, रन टाइम पे एक ही सेलेक्ट हो, जैसे दो रेडियो बटन है, मेल फीमेल। तो ऐसा Yes. तो है कि यूजर मेल भी सेलेक्ट कर ले, फीमेल भी सेलेक्ट कर ले। अगर मेल करेगा तो फीमेल भी सेलेक्ट हो जाएगा, अगर मेल सेलेक्ट Yes. करेगा तो फीमेल डे सेलेक्ट हो जाएगा, अगर फीमेल सेलेक्ट करेगा तो मेल डे सेलेक्ट हो जाएगा। इसलिए Yes. उसको एक ग्रुप में डाला जाता है। वो मैं करके बताऊँगा आपको। अभी जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ, जो डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ डियर, वो बनाने Yes. में बहुत मेहनत लगती है। उसको अगर प्रॉपर फॉलो करते हैं Yes, sir. वो बहुत सी चीज़ें होंगी। Yes. और फ्रेशर से ज़्यादा 2 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे तो ये है डिक्शनरी, ये सब एट्रीब्यूट से पढ़नी पड़ेगी आपको। फ्लोलॉजी क्या करता है उसके Yes. अंदर देखो हम डिफाइन करते हैं। CPU पे तो मैंने ये प्रोसेस आफ्टर इनपुट क्या करता है, PAI प्रोसेस बिफोर आउटपुट क्या करता है, यहाँ पूरा Yes. प्रोसेस कैसे फ्लो होता है। No. हाँ मोहित हेलो। Yes. Yes, sir. हाँ, तो उसके बाद एट एग्जिट कमांड, एट कर्सर सिलेक्शन, चेन इन चेन, ये जैसे यूज टू फ्लोलॉजी डिफाइन द प्रोसेस चेन, इट कैन मेक द ऑल स्क्रीन इनपुट फील्ड्स इनेबल्ड एंड एंटर इनपुट डेटा। वैलिडेशन की यूज होती है, पूरा मैंने यूज किया है, मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ। Yes. ये है मेरे पास मॉडल की नॉर्मल स्क्रीन पे मैंने क्या किया, देखो नॉर्मल स्क्रीन में मैंने क्या किया है, यहाँ पे गौर से देखो।
एक मैंने सिंपल स्क्रीन ली, कस्टमर एप्लीकेशन लिखा है उसको मैंने Yes. मैंने ये कल की आपकी टास्क है, ये कल Yes. की आपकी task है। अच्छा Yes. आज इशू क्या आ रहा था हमारी रिपोर्ट, आज हमारी एज रिपोर्ट में कुछ इशू आया था, वो रिजल्ट हो गया। रिजॉल्व हो गया सर वो। मैंने वो कलर में ना, कलर C511 है ना, वो रॉन्ग डाला था। रिजॉल्व हो गया सर वो। अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया मैंने, Yes. यहाँ पे मैंने टिक की नॉर्मल, उसमें मैंने क्या किया कस्टमर एप्लीकेशन करके यहाँ को टेक्स्ट ले लिया, लेबल ले लिया, यहाँ पे एक लेबल ले लिया, उसका फील्ड ले लिया, कुछ लेबल ले लिए, फील्ड ले लिए, 3 बटन ले लिए, डिस्प्ले, मॉडिफाई, डिलीट और इंसर्ट। Exit. ये कल आपकी टास्क है, आपको स्क्रीन करनी है, 4 बटन ले लिए, आपका सिटी कोड डिफाइन कर देना, उसके बाद दुकान मैं फ्लो लॉजिक में आ गया। Yes. फ्लो लॉजिक ट्रिगर बिफोर स्क्रीन इज ट्रिगर एंड एनी एक्शन ऑफ स्क्रीन, ये आपको दूंगा मैं। यहाँ पे कैसा है, ये तुम्हारा मॉड्यूल स्टेटस आउटपुट के अंदर है, प्रोसेस बिफोर आउटपुट। Output. देखो फ्लो लॉजिक कहाँ है, अगर मैं इसमें मैं जाऊँगा फ्लो लॉजिक तो यहाँ आता है फ्लो लॉजिक। Yes. मैं करंटली एड कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ओके, तो प्रोसेस बिफोर आउटपुट, प्रोसेस आउटपुट। स्क्रीन लोड होने से पहले क्या चाहिए, लोड होने के बाद मुझे दिखाना है। Yes. मैंने यहाँ पे क्या किया, उसके अंदर क्लियर रिफ्रेश डेटा, Refresh data. जैसे ही तुम्हारा आउटपुट के अंदर क्लियर और रिफ्रेश किया, ठीक है, मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, Okay. मॉड्यूल करके देखते हैं। उसके बाद ट्रिगर आफ्टर स्क्रीन इनपुट के अंदर मैंने क्या किया, चेन का यूज़ किया, फील्ड को लिया KNM1 जो फर्स्ट कुनार फील्ड है, Yes. ये वाली आपकी फर्स्ट कुनार कस्टमर नंबर, Yes. उसको मैंने वैलिडेट किया, चेन और इन चेन से किया, यूज़र कमांड लिया। यूज़र कमांड क्यों लिया, क्योंकि बटन्स का यूज़ करना है। Okay. यूज़र कमांड इवेंट कब यूज़ होता है, जब आप बटन्स का यूज़ करते हो। मॉड्यूल यूज़र कमांड अंडरस्कोर ऐसे आप ले सकते हो, देखो कैसे, क्योंकि आफ्टर इनपुट के बाद होगा ना वो, Yes. जस्ट Button. अनकमेंट करके डबल क्लिक करो। यस। It is store a user action. Yes. मतलब तुम क्या करना चाहते हो इनपुट के बाद में, वो जो भी तुम्हें बिजनेस लॉजिक मिलता है यहाँ लिखना है। Yes. ठीक है, तो मैंने इसके अंदर क्या लिखा देखो, डबल क्लिक करके प्रोसेस ऑन हेल्प रिक्वेस्ट किया मैंने, ये बनाया, वैल्यू रिक्वेस्ट के लिए सर्चर बनाया। अब देखो यहाँ सेम स्क्रीन का मैंने टी कोड भी बना दिया, Yes. और कस्टमर है ये तुम्हें मैं रिपोर्ट अभी क्लास के बाद दे दूंगा, उसके अंदर मैंने इसी का टी कोड बना दिया, इसी स्क्रीन का टी कोड कस्टम ट्रांजेक्शन कोड बना दिया। Okay. ये है पूरा Yes. लॉजिक। पहले मैंने क्या किया इसके अंदर, टॉप F01 आई 3 इंक्लूड डिफाइन किया, दैट्स इट। Yes. अब देखो F01 के ना मैंने क्या किया, समझ में आ रहा है, बाउंस हो रहा है। नहीं सर, मैंने पहले ये C80 में किया था ये। अच्छा, तो समझ में आना चाहिए। Yes. तो, Yes. तो Yes. यहाँ पे मैंने इस इंक्लूड के अंदर F01 ने क्या किया, ये किया Logic. डेटा फ्रॉम स्क्रीन क्लिक मूव करंट वार्निंग, Yes. KNA1 ANA1 to yes. किया, Yes. उसके बाद पास स्क्रीन डेटा, यहाँ पे मैंने एक और बोल दिया है, यहाँ पे इंक्लूड है तुम्हारा आई। आई मीन्स इनपुट, जब इनपुट दोगे तो डिस्प्ले डेटा करेगा, गेट करेगा, परफॉर्म, Modify. और लीव स्क्रीन में क्या करेगा, एग्जिट और कैंसिल बैक क्या करेगा, लीव स्क्रीन पे करेगा। लीव स्क्रीन में मैंने क्या किया, लीव स्क्रीन में क्या करेगा, लीव प्रोग्राम करेगा, कॉल स्क्रीन Okay. ये डिफॉल्ट कॉल कर देगा, मतलब वो हट जाएगा, मतलब जैसे यूज करेगा। Okay. हेल्प ऑब्जेक्ट में एक स्टैंड फंक्शन मॉड्यूल कॉल किया, बहुत सिंपल है, तो रिपोर्ट की तरह होता है। ये मैं कल आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, टास्क आपकी क्या है। अब Screen पे GUI.
अब मैं दे दूंगा तुम्हें लॉजिक, तुम्हें तो स्क्रीन डिजाइन करनी होगी। अच्छा यस। ये इसके बाद में तुम्हें वो करवाऊंगा इंटरेक्टिव रिपोर्ट। ओके। ये मॉडल को समझ आने के बाद और तुम्हें पहले स्क्रीन डिजाइन करके फ्लो लॉजिक के अंदर यस। डेटा दिखा। यस। देखो यहाँ पे मॉडल, ये देखो क्या किया यहाँ पे आउटपुट यस। प्रोसेस आफ्टर इनपुट बस चेन का यूज किया, केवल ऐसे ही वैलिडेट करते हैं सिंपल मॉड्यूल वैलिडेट है यहाँ पे। देखो इसमें ये ड्राइवर प्रोग्राम, ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल ये रिपोर्ट नहीं है। यस। यस। मॉड्यूल। तो इसका टाइप क्या होता है, मॉड्यूल है ये, ठीक है। यस। तो पहले आपको ऐसे क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसे 38 में जाके टाइप करोगे मॉड्यूल, कैसे कोई चीज़ समझ नहीं आता है डबल क्लिक करके तो क्रिएट हो जाए। तो कुछ भी चीज़ अगर समझ नहीं आता है तो उसको हाँ मत करना प्लीज, पूछना। तो यहाँ पे कुछ भी कर लो, री फर्स्ट उसको क्रिएट करोगे आप। जब आप क्रिएट करोगे तो पूछेगा तुम्हारा, चलो ये MPP ड्राइवर प्रोग्राम, मैं और तुम्हें प्रोग्राम दे दूंगा। यहाँ पे टाइप क्या करोगे, मॉड्यूल करोगे, मॉड्यूल। स्टेटस कस्टम करोगे, सेव करोगे, तो ये ऐसा दिखेगा। यहाँ मॉड्यूल पुल लिख के आएगा, यहाँ प्रोग्राम लिख के आएगा, बाकी यहाँ से तुम शुरू करोगे, ये ड्राइवर प्रोग्राम है। फिर जब तुम इसको एक्टिवेट करके एक्टिवेट करोगे, अभी तो उसमें कुछ है नहीं, और एक्टिवेट करोगे सेलेक्ट एन एग्जीक्यूटेबल, तो ठीक है ये क्या करेगा, ऐसे काम करेगा। देखो टॉप इंक्लूड है, O01 है, I01 है, M01 O में एट सिलेक्शन आउटपुट, इसके अंदर मैंने क्या किया, O01 है सिलेक्शन काउंट आउटपुट में सेट पीएफ स्टेटस को कॉल करती है। एक पीएफ स्टेटस बना के मैंने वो आइटम ले लिए, जस्ट वो लोड हो जाएंगे, इसके आने से पहले महीने वो डिस्प्ले हो जाएगा। दैट्स इट। टॉप में क्या किया, ग्लोबल डेटा डिक्लेरेशन कर लिया कस्टमर का, फिर कस्टमर की डिटेल्स। आई में क्या किया, आई का मतलब जैसे जब मैं क्लिक करूँगा किसी चीज़ पे बटन पे किसी तो क्या होगा, तो यूजर कमांड पे करेंगे, इनपुट लेगा, देखो इनपुट यस। देगा, डेटा को गेट करेगा। क्लिक जब तुम डिस्प्ले पे क्लिक करोगे तभी डेटा को गेट करना चाहिए, या पहले ही डेटा गेट कर लेगा वो। नहीं, व्हेन डिस्प्ले पे फैन कंडीशन। तो जब तुम डिस्प्ले पर क्लिक करोगे तभी वो गेट करेगा, डिस्प्ले को यस। प्रोसेस करके स्क्रीन पे दिखाएगा। तो मैंने क्या किया, यूजर कमांड में जस्ट मैंने परफॉर्म गेट डेटा के अंदर, उसके अंदर डेटा को गेट किया। मैं यस। पहले करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, डोंट वरी। उसके बाद फंक्शन मॉडल को कॉल किया, एनक्यू वो कमेंट है, यस। मॉडिफाई करके कॉल फंक्शन बिल्कुल इसके बाद में सर्च एम्पलीफाइन किया, ये पूरा करके कल दिखाऊंगा मैं तुम्हें। खैर थ्योरी थोड़ी, और ये एक कस्टमर यहाँ पे टैब स्टेट ने क्या किया, ये स्क्रीन फ्लोर का टैब स्टेट ने क्या किया, कस्टमर लिया, एक कस्टमर वेंडर के लिए डिस्प्ले एग्जिट लिया, दूसरी स्क्रीन में कुछ ऐसा है। ओके। देखो उसमें मैंने एड्रेस नेम कस्टमर की डिटेल ली थी, एक में वेंडर की डिटेल ले ली, वेंडर का टेबल जो होता है वेंडर से, मॉड्यूल टैब स्टेट एक्टिव को कॉल्स ऑन स्क्रीन इंक्लूड, ये पूरा मॉडल। ये है उसका एक्चुअल बिजनेस लॉजिक। ओके। I01 ने इनपुट में क्या किया, मैंने यहाँ से देखो गौर से समझो इसको, मॉड्यूल टैब स्ट्रिप इनपुट मतलब आफ्टर इनपुट में क्या, तो देखो व्हेन सी टैब स्ट्रिप, टैब स्ट्रिप का टैब 1 जो होता है उसका नाम है, किसका नाम है, इसका नाम है। टैब 1। हाँ टैब स्ट्रिप में टैब्स होते हैं यहाँ पे, यस। कहाँ होते हैं टैब, ये होते हैं टैब्स। ये टैब देख रहे हैं, कस्टमर टैब है, एक टैब वेंडर है। वेंडर। जब मैं कस्टमर पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये होगा ओके। तो जब मैं आई, जब मैं
इनपुट मॉड्यूल स्टैटिस्टिक टैब, जो भी टैब का कैट का जो भी मैंने नाम रखा था, जब उस पर देखो, जब उस पर क्लिक करूँगा तो क्या करेगा वो, टैब स्ट्रिप 1 पे जब क्लिक करूँगा तो जी टैब स्ट्रिप प्रेस्ड टैब ये चेंज होती है। देन सी टैब मतलब जब 2 टैब होगा तो ये इसमें डेटा आ जाएगा, मैन अदर डू नथिंग। उसके बाद जब ये डिस्प्ले पे क्लिक करेगा, यूजर कमांड डिस्प किसका टेक्निकल नेम है, डिस्प्ले बटन का टेक्निकल। तो पहले दोनों वर्क एरिया को मैं क्लियर कर लूँगा, गेट कस्टमर डिटेल करूँगा, गेट वेंडर डिटेल करूँगा, दोनों को किस में डालूँ, इंटरनल टेबल में, ये दोनों को बेस्ड ऑन कस्टमर नंबर, दोनों को इसमें वर्क एरिया में सिंगल रिकॉर्ड आ रहा है ना स्क्रीन पे, तो वर्क एरिया को यूज़ करूँगा। अगर मैं एग्जिट बट पे क्लिक करता हूँ तो लीव प्रोग्राम कर देगा ये, मूव करस्पॉन्डिंग इससे करके यहाँ से वर्क एरिया से टेबल में डेटा मूव करूँ, जब सेव करें। ओके सेव के टाइम पे डेटा शुड बी सेव्ड इनटू द डेटाबेस टेबल, तो डायरेक्ट मूव कर दूंगा यहाँ पे। और बिफोर स्क्रीन आने से पहले क्या चाहिए मुझे, देखो मॉड्यूल टैब स्ट्रिप एक्टिव, आउटपुट में टैब स्ट्रिप एक्टिवेट टैब इक्वल कल प्रक्रिया भी लिखा हूँ मैं पूरा। मूव करस्पॉन्डिंग करेगा, यहाँ पे कॉल स्टेटस, ये मैंने स्टेटस बनाना पड़ेगा एक, इसी बटन में जाके सेट पी एफ स्टेटस मूव करस्पॉन्डिंग। टॉप में मैंने क्या किया, सिंपल ये इसका ड्राइवर प्रोग्राम कांस्टेंट डिफाइन किया, ये कांस्टेंट टाइप का डिफाइन किया, कंट्रोल लिया, टैब स्ट्रिप टाइप टैब स्ट्रिप स्टैंडर्ड है डेटा। उसके बाद यहाँ स्ट्रक्चर लिया मैंने, ये स्ट्रक्चर लिया सेक्टर मोहित समझ में आ रहा था। हाँ सर थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, प्रैक्टिकल कल करो, एक स्क्रीन बनाना सिंपल, कंट्रोल लेने के बाद ये 4 बटन लेना, उसके बाद तो फ्लो लॉजिक पे क्लिक करेगा तो कहीं कोडिंग भी आ जाएगा। यस कोडिंग में क्या करना है, यहाँ पे देखो देखो पीबी और समझ ना, प्रोसेस बिफोर आउटपुट है, यहाँ पे मॉड्यूल्स कमेंट रहते हैं पहले से एक्चुअली, देखो यस यस पहले हम उसमें क्या करते थे, इंक्लूड काम करके करते थे, इंक्लूड यहाँ पे क्या है, मॉड्यूल मॉड्यूल करके काम करते हैं, दैट्स इट। अभी ये मॉड्यूल स्टेटस आउटपुट में ये है ना, यस तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ ऑलरेडी पी एफ स्टेटस पहले से बना हुआ है, हम कमेंट पर यहाँ पे जी मोहित मेन्यू डबल क्लिक, यस यस, शॉर्ट शूट एक प्रॉपर मेंटेन करके कंटिन्यू। अभी यहाँ पे जरा आता है ठीक है, यहाँ पे आता है मेन्यू का, सबसे नीचे आता है ये देखो, इसको बंद कर दिया, इसका मेन्यू थोड़ा चेंज हो गया, पहले ज़्यादा अच्छा था। यहाँ रखे ओके, यहाँ पे क्या क्लियर, यहाँ पे बैक, बैग ये क्या है क्लोज, कैंसिल, क्लोज ये क्या है इजी, ठीक एग्जिट है, सब पे देना पड़ेगा यहाँ पे यस कोड इसका। यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, कुछ कर लो ओके, ठीक है। अभी यहाँ से इसको एक्टिवेट कर लेंगे, ठीक है, यस इसको बैक चले जाएंगे। अब जैसे ही मेरी स्क्रीन लोड होगी तो एक मेन्यू आइटम इसको काम करने लगेगा। देखो अभी मैं कमेंट करता हूँ, एक्टिवेट क्या हो रहा है, लाइन 6 गो टू लिया हाँ इसको हटाना है, इसकी जरूरत नहीं यूज करवाना इसको, तो लगाने का कोई फायदा नहीं, इसको डिलीट करने के लिए डिलीट, ठीक है। डिलीट एक्टिवेट
फ्लो लॉजिक। एक्टिवेट हो रहा है। एग्जीक्यूट। तो सर मैंने अभी, यस बोलो बोलो। सर, अभी सब ये डिजाइन पार्ट यूआई वाले करते हैं क्या, क्या अपने को भी करना पड़ता है? हमको भी करना पड़ता है। हमको भी डिजाइन बहुत इजी है, ड्रैग ड्रॉप करना आपके लिए। ओके। एक्टिवेटेड। हाँ, एक्टिवेट हो गया ना। तो अभी देखो यहाँ पे, जैसे मैं देखो अभी मैं क्या करता हूँ, रोल एडिट में जाके नहीं, इसमें नहीं, आउटपुट इसके अंदर इसको अनकमेंट करता हूँ, सेव कर देता हूँ। एक्टिवेट। सब कुछ करना पड़ेगा हमको, आगे आना भी करना है, यूआई का भी करना है। देखो ठीक है, तो एग्जीक्यूट करूँगा। अभी यहाँ पे ये जो मेनू आइटम्स आ रहे हैं ना, पहले क्या था, ईसीसी या उस पुराने वर्जन में यहाँ पे आते रेड कलर के। अभी ये क्या है, मैं क्या करूँगा, अगर मैं कैंसिल करता हूँ, कैंसिल हो जाएगा। यस। काम कर रहा है, सारे काम कर रहा है। तो यूज़र कमांड में अगर तुम कुछ बटन का कोड लिखना चाहते हो तो वो भी होगा उसके अंदर। यहाँ पे सेम ही किया। तो एक ट्राई करो मोहित, मैं भी शेयर करता हूँ, थोड़ी यस। थोड़ी सी पढ़ो, यस। पढ़ना तो पड़ेगा भाई, एक लाइन रहेगी यस। आराम से। मैं कुछ भाग लिया, मैं थोड़ा रिपोर्ट देखे, रिपोर्ट एनहेंस नहीं, रिपोर्ट तुम्हारे जितने हैं मॉड्यूल टूल और एनहेंसमेंट और फॉर्मेट ट्यूनिंग होके तुम्हें एक दो तीन दिन का दिन टाइम देगा, ओके। एक 4 दिन का टाइम देगा ना। मैं कई बार रहा हूँ, तुम कर लोगे, पूरा अच्छे से रिवाइज करो। जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हारे अंदर, फिर मैं आ जाऊँगा नेक्स्ट स्टेप यस। पे। जब सब कुछ बाउंड होगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यस सर। ये फ्लो लॉजिक क्या से काम करता है पूरा ऐसा। यस सर, आप बुक जल्दी से पब्लिश कर दो, क्योंकि आपकी बुक इतनी अच्छी बनेगी ना कि बहुत बच्चों को काम होगा। अच्छा, हमको हेल्प होगी राइट, बहुत होगी। यस सर। कोई भी इतनी अच्छी तरह से लिखा ही नहीं किधर। ओके, थैंक यू। मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में भी ऐसे ही लिखा भाई। ओके। बुक भी इतना ही डेप्थ है माना, बहुत ही डेप्थ है उसको जाके। यस। और थोड़े तुम्हारे स्टूडेंट्स हो तो मेरे को देना, हमारा पुणे मुंबई से, पुणे से, मुंबई से, जो तुम्हारे पूजा आईटी प्रोजेक्ट मतलब देख रहा बैठ के लिए। यस। हाँ हाँ। तो उसको पूरा पढ़ो मुझे। देखो, ये स्टेप्स तुम्हें आज फॉलो करने हैं, स्टेप्स टू क्रिएट मॉड्यूल टू प्रोग्राम। पेज नंबर तो नहीं लिया है। एग्जीक्यूट द कोड ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले तो विजिट करना, फिर मॉडल एसएससी फुल प्रोग्राम बना। करना है, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। डिस्प्ले ये स्टेप करके डिकोड है इंजीनियरिंग सबसे तुम्हें, ये है तुम्हारा आज का पूरा करके मुझे बस। सेक्शन बना के बैक। यस। पेज डिटेल सेट जिन्होंने बनाया, सेट के बाद यूजर का मानना क्या करना पड़ता है भाई। अगर ये तुम पढ़ लो बिना डियर, यस। इंसर्ट स्टेटमेंट, डेटा डिलीशन स्टेटमेंट, सभी बनने वाले ये बनेंगे। तो मैं शेयर करता हूँ, वहाँ पे तुम्हें प्रोग्राम मॉडल बोल देते हैं। तो आज के लिए यस। डियर इतना ही, क्योंकि थोड़ा खाना भी खा लेता हूँ, खाना खाना खाया नहीं थी। हाँ सर। पढ़ाई करो और मॉडल टू को देखो जो मैंने तुम्हें दिया है, प्रैक्टिस करो, बैठे रहो सिस्टम पे। यस सर। और कुछ काम नहीं तो सुबह सो जाना अपना टाइम। यस। ठीक है। यस। थैंक यू सर। गुड नाइट, वेलकम।